Very good morning, dear students. Welcome to Path Online Tutorials. Students, today we will discuss our chapter number 7, working with tables. So, today we will learn what do you mean by table, okay, or what is a table, how we can insert a table in Microsoft Word, or what are the different ways to insert a table in MS Word. Third one, after inserting a table, how can we enter data in that table, ठीक है, or that is called as entering data. After that we will discuss insertion and deletion of rows and columns from a table. Next, how to copy and move a table from one place to another. And next topic that we will discuss, that is splitting and merging of tables. ठीक है, splitting means dividing a table or merging means combining multiple tables into one. So we will discuss these topics one by one. So our first topic is, what do you mean by table? बेटा क्या होता है टेबल? आप सब अपने डेटा को अरेंज करते हो टेबल्स में, करते हो ना? यस, अ टेबल is basically an arrangement of data in the form of rows and column. When you arrange your data in the form of rows and column, that is called a table. Okay, and that is very efficient method and useful method for organizing and presenting large amount of data and information. If you want to organize or present large amount of data, तो आप उनको रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ टेबल. बेटा फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग द टेबल्स फॉर प्रोडक्ट कैटालॉग दैट शोइंग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, करेक्टरिस्टिक्स एंड फोटोग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट्स. इवन जो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, अब सितंबर एग्ज़ाम का रिजल्ट है, आपके पास डिजिटल शीट्स आ जाएंगे. डिजिटल शीट्स मीन्स यू आर गेटिंग एन एक्सेल शीट. वो डिपेंड करता है कि हम एक्सेल में टेबल को क्रिएट कर रहे हैं और वी आर क्रिएटिंग द टेबल्स इन MS वर्ड. इफ़ यू वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन योर डेटा, अगर आपको अपने डेटा के ऊपर जो आप डेटा टेबल्स में स्टोर कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस वी कैन ईजिली डू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. That is our next topic. After discussing MS Word, we will move to MS Excel. So today we will learn how to create tables in Word. ठीक है, हमें वर्ड प्रोसेसर में टेबल्स बनाना सीखना है पहले. Then I will tell you after completing MS Word, I will tell you how to create tables in Excel. Okay. So the next thing, how to create. So our first topic is how to insert a table in Microsoft Word. Okay, Microsoft Word provides different ways to create a table. Okay, the very first one method is using table grid. Second is यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन. ठीक है, पहली ऑप्शन है आपके पास, यू कैन इंसर्ट अ टेबल यूजिंग टेबल ग्रिड. सेकेंड इज बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन. एंड थर्ड वन इज यू कैन ड्रॉ अ टेबल as per your convenience. So first topic is inserting a table, and we will start practical by using this first method, using table grid. Now we will insert a table. For this we have to open a word document. ठीक है, हम एक word document open कर लेते हैं. Now this is your word document, MS Word interface. Now to insert a table, first of all you have to click onto the insert tab, and from insert tab the second group is tables group, and from insert tab you have to click onto the table option from tables group. Okay, आपको tables group में जाना पड़ेगा, वहाँ से table option पे क्लिक करना पड़ेगा. Here there are various options for inserting a table.
दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज ग्रिड. देखो आपके पास ग्रिड आ रही है सबसे पहले. सो वी विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट वन मेथड, दैट इज बाय यूजिंग द टेबल ग्रिड. टू इंसर्ट अ टेबल, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी आपको इंसर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वहाँ अपना कर्सर लेके जाइए वर्ड डॉक्यूमेंट में. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन एंड द वेरी फर्स्ट, अगर आप ग्रिड ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर दिस ग्रिड. ठीक है, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए. इज इट क्लियर? सपोज आई वांट 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. यू कैन इंसर्ट, जैसे ही आप ग्रिड में से नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग अ टेबल विल गेट इंसर्टेड इनटू योर वर्ड डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपका कर्सर प्लेस था. इज इट क्लियर? Yes, the next very important thing is intersection of row and column is called a cell. Yes, intersection of row and column is called a cell. Now the next method for inserting a table. एक टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया by using grid method. Now I want to insert another table. ठीक है, by using second method. For this, go to insert tab, click on this table option. You can use insert table option. Okay, when you click on insert table option, a insert table dialog box will appear. Here you have to specify the number of columns and number of rows. Okay, suppose I need here 3 rows and 3 columns. ठीक है, तो अप और डाउन एरो को प्रेस करके you can increase the number of columns or decrease the number of columns. Similarly, you can increase the number of rows and decrease the number of rows by pressing these arrows, or you can simply write here, ठीक है, I need 3 rows and 3 columns. Okay, after that click on OK. Okay, yes, a table with 3 rows and 3 columns will get inserted. Now our next method, I want to insert another table by using third method. Yes, that is known as draw table option. For this, you have to click on the draw table option. जैसे ही आप draw table option पर click करेंगे, your cursor will change to a pen sign. Yes, आपका cursor change हो जाएगा एक pen sign में, and you can draw a table by dragging the mouse. Okay, by dragging the mouse आप इस तरह से एक टेबल की आउटलाइन बना सकते हैं. then you can make number of rows and columns, and means you can draw your table as per your convenience. Is it clear? These are the 3 methods by using table grid. second table हमने insert किया, yes, by using insert table option, और थर्ड हमने किसकी हेल्प से किया, by using draw table. the next, आप you can also insert some quick tables. means आपको कुछ बने बनाए tables चाहिए अपने MS Word में, तो you can choose these built-in tables. ये बने बनाए tables होते हैं बेटा. built-in means जो चीज़ already available है आपके पास. so you can insert, you just click on these tables, और जहाँ पर आपका करंट पॉइंटर होगा, आपका पॉइंटर मीन्स आपका जो कर्सर की लोकेशन है वहीं पर ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा. सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ क्विक टेबल हेयर, जस्ट क्लिक द माउस वेयर यू वांट टू इंसर्ट योर टेबल, गो टू दिस क्विक टेबल ऑप्शन एंड यू कैन चूज ऑप्शन फ्रॉम हेयर. ओके, सपोज आई वांट टू insert this table. Yes, a table will get inserted. Is it clear? So these are the different methods to insert a table in MS Word. Students, you can also insert an Excel sheet in the MS Word. Yes, Excel sheet कैसे insert करेंगे? For this, click on this table option from the insert tab and click on the Excel spreadsheet. बेटा जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करोगे एक एक्सेल की शीट इंसर्ट हो जाएगी. yes, that gets inserted into your MS Word document, and you can apply your formulas
जितने भी एक्सेल में फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो एक्सेल में हम डेटा एंटर करते हैं ना, वी कैन ईजिली अप्लाई द फार्मूलाज और फंक्शंस ऑन द डेटा। ओके, बहुत ईजिली कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाती हैं डेटा के ऊपर इफ़ यू एंटर द डेटा इन द एक्सेल शीट। सो rather than inserting simple table in MS Word, you can also insert Excel sheet, and you can make table with the help of an Excel sheet. Is it clear? So this is another benefit, or this is another way to insert a table, because Excel में जो data insert होता है that is in the form of tables. Excel की जो sheet होती है that is a collection of rows and column. Is it clear? So these are the various ways to insert a table in MS Word. Now once you enter the table, or once you draw the table or you insert a table in MS Word, you can easily insert data, or you can easily enter the data in a cell. बेटा अब आपको इन सेल्स में क्या करना है, बेसिकली यू वांट टू प्लेस द डेटा. फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ स्टूडेंट इन दिस सेकेंड टेबल, ठीक है, जिसमें मैंने 3 रोज और 3 कॉलम्स लिए हैं, एंड आई वांट टू डिलीट ऑल दीज टेबल्स. यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर on the table symbol and just right click and you can cut it. Okay, now I want to insert or enter the data in the cells. For this you have to place the insertion point in the cell, ठीक है, and just type the text whatever you want to enter. Suppose I want to make a student table, so सबसे पहला मैंने field ले लिया, that is roll number. Yes, roll number. Now you want to move to the next cell. बेटा next cell में जाने के लिए just need to press tab की, और आपके पास 4 arrows की होती हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, that is left, right, up and down. Up and down is for moving upward cell, और अगर bottom वाले next cell पे below जाना है, आपको down जाना है, तो you have to press the down key. And if you want to move to the next cell रिस्पेक्टिव जो आपके पास नेक्स्ट सेल है उसमें जाना है, तो जस्ट नीड टू प्रेस द राइट एरो. ओके, सो इन दिस वे यू कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ओके, और यू कैन सिंपली गो विद द हेल्प ऑफ टैब की ऑल्सो टू द नेक्स्ट सेल. नाउ नेक्स्ट नेम, आई वॉन्ट टू एंटर द नेम, एंड नेक्स्ट आई वॉन्ट टू एंटर द मार्क्स. इज इट ओके? आई वॉन्ट 3 fields or 3 columns in my table, that is roll number, name and marks. Now I want to move to the next cell. Yes, just need to press the tab key. Okay, इस तरह से आप tab की प्रेस करते जाएंगे, एंड जब भी आप लास्ट सेल पर पहुंचेंगे, अगेन व्हेन यू प्रेस अगेन, जब आपने इस पर टैब की प्रेस की, तो अ रो विल गेट इंसर्टेड. ठीक है, इन दिस वे यू कैन इंसर्ट अ रो. ठीक है, देयर आर सम अदर वेज टू इंसर्ट अ रो और कॉलम. कैसे इंसर्ट करना है? वन मैथड इज दिस कि व्हेन यू रीच एट द एंड, ये जैसे ही एंड पर पहुंचते हैं, जस्ट प्रेस टैब की, एक न्यू रो एंटर हो जाती है आपके पास. नाउ द अदर वेज, सबसे पहले हम कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं. सपोज रोल नंबर एंटर किए मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 रोल नंबर्स आर देयर. ओके, नाउ आई वांट टू फॉर्मेट, मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है. I just want to increase the size of the font, okay, so that it's visible to you. Yes, 36 size कर दिया मैंने इसका. Okay, font size. So accordingly आपके rows और columns की height width क्या हो जाती है, increase हो जाती है. Now I want to enter the name. Suppose names I have taken, that is A marks 25. Okay, in this way B. Okay, marks 34. Now I want to insert a row between 1 and 2. Okay, मुझे एक new row insert करनी है. तो there are different methods. The very first method is कि whenever you insert a table, बेटा 2 additional tabs will get added in the ribbon. One is your design tab and second is layout tab. So to insert a row or column, you just need to click on layout tab. ठीक है,
जैसे ही आप लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, देयर इज़ अ ऑप्शन और देयर इज़ अ ग्रुप नेम एज रोज एंड कॉलम। आप करंट रो से, जिस भी रो पर आप हैं, आपका कर्सर है, आप उस रो से एक बिलो भी किसी रो को इंसर्ट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम इंसर्ट अबव ऑप्शन you can add a new row directly above the selected row. Similarly, you can insert a column also. Suppose no mark से पहले मुझे एक कॉलम ऐड करना है, तो just need to select this column, okay, और move to this column. अगर आप इस insert left पर क्लिक करेंगे तो a new column directly added to the left of the selected column. Yes, एक new column ऐड हो गया. And if you want to add a new column, मुझे रोल नंबर से के राइट में एक न्यू कॉलम ऐड करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन द इंसर्ट राइट. इन दिस वे यू कैन ऐड अ न्यू रो, अ न्यू कॉलम बाय वन मैथड. ठीक है. द अनदर मैथड इज, yes, another method is you can just click on this rows and column. Yes, rows and column group में just need to press this right arrow, and from here you can also insert an entire row and an entire column. Is it okay? Now the next way is you just, हाँ जी, the third method to insert a row or column is just need to right click on the row. ठीक है, किसी भी रो पर राइट क्लिक कीजिए. there is a, हाँ जी, ऑप्शन insert. From here you can insert your column to the left, insert column to the right, insert row above, insert row below. So there are three methods to insert a row and column in an existing table. Is it clear, student? Yes, we can add or we can insert a table. After that we can enter the data into that table, and we can also insert a row or column to the left or right of a column, and you can also insert a row to above and below the selected row. So our next topic is how to delete a row. Again same method. हाँ जी, if you want to delete a row or column, suppose I want to delete this column जो मैंने ऐड किया था, again click on this layout tab, and from this rows and column group there is a option delete. What you want to delete? You want to delete a particular cell, or you want to delete a particular row or column? I want to delete this second column, so just click on this delete column. This is the first method. I want to delete this third column. Again click on this column, right click here. हाँ जी, again that is a option. There is an option name as delete cells. हाँ जी, जैसे ही delete cells पे क्लिक करोगे, again 4 options are there. What do you want to delete? You want to delete an entire row, entire column, or if you want to delete a particular cell, you can also delete. तो corresponding अगर आप एक particular cell को delete करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपकी column वाला cell shift हो या row वाला cell shift हो उसकी place पे, you can also select here. Okay. So I want to delete entire column, click here and OK. Yes, is it clear? How to insert a row, how to insert a column, how to delete a row, and how to delete a column. So our next topic is, splitting and merging of cells. Splitting और merging of cells करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस सेल. ठीक है, सो दैट जो ओरिजिनल टेबल है मेरा वो एज सच रहे, और आपको सेकेंड टेबल में मैं आपको मर्जिंग और स्प्लिटिंग करके दिखाऊँ सेल्स की. सो फॉर दिस आई हैव टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस टेबल. ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं. येस, कॉपी, यू नो हाउ टू कॉपी. आप कॉपी करते हो ना, कंटेंट्स को कॉपी करते हो. फॉर दिस यू कैन यूज अ शॉर्टकट की, दैट इज Ctrl+C, एंड पेस्टिंग के लिए क्या करते हो, Ctrl+V. दैट इज अ वेरी बेसिक ऑपरेशन फॉर कॉपी एंड पेस्ट. सिमिलरली आप इस तरह से आप
एक टेबल को भी कॉपी कर सकते हो. फॉर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टेबल मूव हैंडल. ओके, ये आप जब भी आप एक टेबल पे क्लिक करोगे ना, टेबल के टॉप पर एक प्लस का साइन आ जाता है. ठीक है, लाइक दिस. ओके, नाउ क्लिक हियर. आपका पूरे का पूरा टेबल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. एंड जस्ट नीड टू प्रेस द राइट क्लिक एंड यू कैन चूज ऑप्शन ऑफ कॉपी फ्रॉम हेयर. आप यहाँ से भी कॉपी की ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो बेटा. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और यू कैन सिंपली प्रेस Ctrl+C. ओके, एंड आई वॉन्ट टू पेस्ट. मुझे ये दोबारा पेस्ट करना है इन बिटवीन दीज सेल्स. ठीक है, आई वॉन्ट टू प्लेस माई टेबल हेयर, और सेकेंड कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ तो जस्ट नीड टू प्रेस Ctrl+V. इज इट क्लियर? Similarly, you can move your cell, move your table by clicking on this. Is it clear? Yes, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस पे क्लिक करोगे, किस पर, टेबल मूव हैंडल पर, एंड जस्ट नीड टू ड्रैग योर टेबल. Is it clear? Okay, now I want to perform splitting and merging of cells. पहले हम स्प्लिटिंग ऑफ एंड मर्जिंग ऑफ सेल्स कर लेते हैं, फिर हम स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ऑफ टेबल्स भी करेंगे. ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि हाउ टू स्प्लिट अ सेल इनटू मल्टीपल सेल्स. बेटा स्प्लिट का क्या मतलब होता है, तोड़ना. आई वांट टू स्प्लिट अ सेल इनटू मल्टीपल सेल्स. सपोज यहाँ पर मुझे ये मैंने थर्ड कॉलम बनाया है मार्क्स का. ठीक है, रादर देन दिस मैं इसको सब्जेक्ट का कॉलम बनाना चाहती हूँ, और सब्जेक्ट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो. ओके, मीन्स आई वॉन्ट टू स्प्लिट दिस सेल इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, अब उसके लिए राइट क्लिक एंड देयर इज एन ऑप्शन स्प्लिट सेल. ओके, आप यहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हैं, और यू कैन क्लिक ऑन दिस लेआउट टैब एंड गो टू द थर्ड ग्रुप, दैट इज मर्ज ग्रुप, and from here you can choose the option split cells. बेटा जैसे ही आप split cells पे क्लिक करेंगे, आप selected cell को multiple cells में split कर सकते हैं. Suppose I want to split this cell into 2 rows. Firstly मुझे इसे 2 rows में divide करना है. So number of columns 1. ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक इट 2 rows फर्स्टली. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड नंबर ऑफ रोज 2. ओके, अभी आपको हाँ जी दिखाई दे गया, 2 rows में डिवाइड हो गया ये एक सेल. यस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके रिस्पेक्टिव सेल थे, इसके एडजेसेंट सेल थे, उनके अकॉर्डिंग उनकी विड्थ भी चेंज हो गई. इज इट क्लियर? नाउ आई वॉन्ट टू डिवाइड दिस सेकेंड सेल इंटू फर्दर 2 cells. ओके, आई वॉन्ट टू डिवाइड इंटू 2 columns. Again click on this split cells option, and from here I want to divide into 2 columns. ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया एंड क्लिक ओके. इज इट क्लियर? हाँ जी. सिमिलरली यू कैन सेलेक्ट दिस सेल एंड स्प्लिट इनटू 2 columns. Is it clear? In this way you can split your cells into multiple cells. Either you can divide a cell horizontally or you can divide a cell vertically. जितने मर्जी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में आप अपने सेल को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. और यू कैन राइट क्लिक हेयर, यहाँ से भी स्प्लिट सेल की ऑप्शन आ जाती है. इज इट क्लियर? इन दिस वे मैंने अपने टेबल को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. ओके, मीन्स एक सेल को फर्दर पहले 2 rows में डिवाइड किया, और फिर उससे नेक्स्ट जितने भी उसके डिसेंडेंट उसके नीचे सेल्स थे उन सबको 2 columns में डिवाइड कर दिया. इज इट क्लियर? हाँ जी, समझ में आ गया ये हाउ टू डिवाइड अ सेल इनटू मल्टीपल सेल्स. नाउ आई वांट टू राइट मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 हियर. ठीक है, मुझे यहाँ पर 2 marks की वैल्यूज एंटर करनी थी, दैट्स वाई मैंने इसे क्या किया, 2 पहले 2 rows में डिवाइड किया और फिर 2 columns में डिवाइड कर दिया. Is it clear how to split a cell? Now I want to merge the cells. I don't want to do this splitting. मुझे ये splitting नहीं करनी थी. Okay, first of all
I have to delete this data. I want to merge all these cells into a single cell. So select the multiple cells that you want to merge. ठीक है, आपको वो मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसे आप मर्ज करना चाहते हो. एंड देन फ्रॉम मर्ज ग्रुप इन लेआउट टैब you can click on this merge cells option. Yes, multiple cells merge हो गए single cell में. Is it clear? Yes. In this way you can merge your cells. और अगर आप इस तरह से मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे तो भी ये एक ही सेल में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. इज इट क्लियर? आई वॉन्ट टू अनडू माई लास्ट एक्शन. सो मैंने Ctrl+Z किया और अपने टेबल को इस तरह से चेंज कर दिया. नाउ आई वॉन्ट टू परफॉर्म स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ऑफ टेबल्स. अभी तक हमने किया स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ऑफ सेल्स. ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक कॉपी क्रिएट कर ली थी. नाउ आई वॉन्ट टू परफॉर्म स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ऑफ मल्टीपल टेबल्स. पहले एक ही टेबल को मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट करेंगे और फिर उन मल्टीपल टेबल्स को एक सिंगल टेबल में मर्ज कर देंगे. ओके, नाउ टू डिवाइड अ टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स और टू परफॉर्म स्प्लिटिंग टास्क, व्हाट यू हैव टू डू. जहाँ से आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, सपोज आई वॉन्ट टू स्प्लिट इट फ्रॉम द 4th रोल नंबर. ओके, रोल नंबर 4, 5, 6 को मैं अलग टेबल में लेके जाना चाहती हूँ और 1, 2, 3 को अलग टेबल में. सो क्लिक ऑन द सेल जहाँ से आप स्प्लिटिंग करना चाहते हैं. इज इट क्लियर? गो टू लेआउट टैब and from merge option there is another third option there, that is split table. This option split the table into 2 tables. जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे, हाँ जी, आपका एक सिंगल टेबल 2 टेबल्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया और डिवाइड हो गया. इज इट क्लियर? नाउ आई वॉन्ट टू गिव द सेम हेडिंग्स जो मैंने यहाँ पर रोल नंबर, नेम और मार्क्स दिया था. उसके लिए आपको इस रो से अबव एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी. येस, यू कैन डू दिस बाय एनी ऑफ द 3 मेथड, एनी वन ऑफ द 3 मेथड्स. 3 मेथड्स होते हैं. येस, मैं जस्ट राइट क्लिक वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ. राइट क्लिक हियर, क्लिक ऑन द इंसर्ट कमांड. ओके, इंसर्ट ऑप्शन, एंड आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ रो above this current row. Yes, a new row will get inserted. Yes, and then from here you can copy your data and here you can paste your data by Ctrl C and Ctrl V. Student, it's clear how to split your table into multiple tables. Now I want to perform second operation. I want to join multiple tables or I want to merge 2 tables into a single table. हाँ जी, मर्जिंग करने के लिए आपको जस्ट इस गैप पे क्लिक करना पड़ेगा जो आपके 2 टेबल्स के बीच में गैप है, एंड यू जस्ट नीड टू प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. जैसे ही इस स्पेस को डिलीट करेंगे आप, आपका स्पेस डिलीट हो जाएगा. आपके 2 टेबल्स क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, मर्ज हो गए. नाउ हियर फ्रॉम हियर यू कैन डिलीट दिस रो. आपने जो सेकेंड टाइम हेडिंग दी थी, आप सिंपली इस रो को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. उसके लिए जस्ट राइट क्लिक एंड यू कैन प्रेस ऑन द डिलीट ऑप्शन. ठीक है, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा एंड फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट डिलीट सेल्स ऑप्शन or you can go to the layout tab and from here you can click on this delete option from rows and column groups and you can delete a particular row. yes, ठीक है, आप इस particular row को delete कर सकते हैं यहाँ से. yes, in this way we can join 2 tables into a single table and that is called merging of tables. You can also delete this complete table by click on this delete and you can click this option delete entire table. yes, entire table will get deleted. if I want to perform undo, last action मुझे undo करना था,
तो आई सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस Z. इज इट क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, हाउ टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर रो, कॉलम. रो आपको अबव एंटर करनी है, एक करंट रो से बिलो एंटर करनी है, हाउ टू एंटर द डेटा एंड हाउ टू मर्ज अ सिंगल सेल, or sorry, how to merge multiple cells into a single cell, how to divide a cell into multiple cells, and how to divide a table into multiple tables, or how to join multiple tables into a single table. That means splitting and merging of tables and splitting and merging of cells. Now बेटा नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक हम करते हैं कि whenever you enter a whenever you insert a table, बच्चे आपने किसी भी कमांड से एक टेबल को इंसर्ट किया हो, किसी भी ऑप्शन से. कौन कौन सी ऑप्शन से? आइदर बाय ग्रिड ऑप्शन, आइदर बाय इंसर्ट टेबल, आइदर बाय ड्रॉ टेबल और क्विक टेबल. बच्चे यू कैन परफॉर्म फॉर्मेटिंग ऑन दैट टेबल. ठीक है, जब भी आप एक टेबल को इंसर्ट करते हो 2 एडिशनल टैब्स ऐड हो जाती हैं. लेआउट टैब से आप क्या कर सकते हो, अभी आपने रोज एंड कॉलम्स को डिलीट किया, ठीक है, मर्ज ग्रुप यूज़ किया, स्प्लिट सेल्स और मर्ज स्प्लिट टेबल करने के लिए. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो इंक्रीज हाइट एंड विड्थ, हाइट ऑफ रोज एंड विड्थ ऑफ कॉलम्स. बच्चे इसके साथ साथ आप अपने डेटा को भी अलाइन कर सकते हो बाय यूजिंग लेआउट टैब. अलाइनमेंट मीन्स आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करनी है या वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है. सपोज आई वांट टू डू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, आई वांट टू अलाइन माय डेटा टू द सेंटर. ठीक है, आपको पता है टेक्स्ट की लेफ्ट राइट सेंटर, हाँ जी, अलाइनमेंट्स होती हैं. एंड इसी तरह आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, वर्टिकली भी. मीन्स एक सेल में हॉरिजॉन्टल तो आपने अलाइनमेंट कर दी, वर्टिकल अलाइनमेंट होती है कि आप सेल में टॉप पर लेके जाना चाहते हो. ठीक है, सपोज आई वांट टू चेंज द डेटा. ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट, देखो टॉप पे चला गया डेटा. ओके, इसी तरह आपका राइट में भी जा सकता है, बॉटम में भी आ सकता है. ओके, सो इन दिस वे यू कैन change the alignment of your data in the table. बच्चे next thing is you can also convert this text or this table to text. means अगर आपको किसी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ना, तो यू कैन सिंपली डू इट बाय क्लिकिंग ऑन दिस कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द डेटा ग्रुप इन लेआउट टैब. जैसे ही आप क्लिक करोगे बेटा वो आपको कहेगा कि आपसे पूछेगा, एक कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा एंड इट विल आस्क यू वांट टू सेपरेट द टेक्स्ट विद पैराग्राफ मार्क. मीन्स आपने जो अलग अलग सेल्स में डेटा लिखा है आप उसको कैसे सेपरेट दिखाना चाहते हो टेक्स्ट में. यहाँ तो सेल्स में अलग अलग दिख रहा है आपको, आप उसको टैब की से करना चाहते हो, कॉमा से करना चाहते हो. ओके, आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन द टैब की. मीन्स एक टैब जितना स्पेस आ जाएगा. इज इट क्लियर? जितना डेटा आपने सेलेक्ट किया था वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में. इज इट क्लियर? अगेन डू इट. ठीक है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस होल डेटा टू टेक्स्ट. ओके, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट द टेबल, क्लिक ऑन लेआउट टैब, फ्रॉम डेटा ग्रुप क्लिक ऑन कन्वर्ट टू टेक्स्ट. नाउ आई वॉन्ट टू चूज द अनदर ऑप्शन दैट इज कॉमर्स. ठीक है, अब जितना भी डेटा है ना जो आपका डिफरेंट सेल्स में है दैट इज सेपरेटेड बाय कॉमा सिंबल. यस, क्लियर? रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा मार्क्स, 1, A, 25. So in this way you can convert your text to table to text. You can also convert text to table again. ठीक है, चलिए पहले मैंने इसको अनडू कर दिया था, दैट्स वाई मैंने इसको क्या किया, पहले टेक्स्ट को कन्वर्ट किया, टेबल को कन्वर्ट किया टेक्स्ट में. नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट टू अगेन टेबल. क्लिक हियर, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन में ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आता है. ओके, यहाँ से आप टेक्स्ट को अगेन टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, और सेपरेट जो आपने टेक्स्ट को सेपरेट किया हुआ क्या चीज़ कंसिडर करनी है,
मैंने टैब्स के बेसिस पे सेपरेट कन्वर्ट किया था, तो टैब्स को सेलेक्ट करके एंड देन क्लिक ओके. इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट योर, yes, you can convert your table to text and text to table. Is it clear beta? Yes. You can also apply the formatting on your table. ठीक है, आप टेबल की अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हो. अभी तक आपने एक एडिशनल टैब, yes, आपने एक एडिशनल टैब यूज़ की, दैट इज़ योर लेआउट टैब टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस ऑन द टेबल. जो भी आपने टेबल को इंसर्ट किया है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनी ऑफ द ऑपरेशन लाइक इंसर्शन, डिलीशन, स्प्लिटिंग, मर्जिंग, यू कैन यूज yes this layout tab. Now I want to use second tab, design tab. Design tab is basically used to change the format of the table. ओके मुझे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं करनी जो टेबल में है. इफ़ यू वांट टू परफॉर्म द फॉर्मेटिंग ऑन द टेक्स्ट रिटन इन द सेल्स, you have to go to the home tab to perform the formatting of the text. जैसे सिंपल करेक्टर फॉर्मेटिंग की थी ना आपने, yes, from this font group. आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर चेंज करना है, you can perform from this. okay, I want to perform the formatting of the table. ठीक है, मुझे टेबल की अपीयरेंस को चेंज करना है. so go to the design tab. from here you can change the, yes, you can change the स्टाइल ऑफ द टेबल फ्रॉम द टेबल स्टाइल्स ग्रुप. वो डिपेंड करता है, स्टाइल्स आपके पास क्या होते हैं, कुछ प्री फॉर्मेटेड ग्रुप्स होते हैं. ओके, मीन्स प्री फॉर्मेटिंग कमांड्स होती हैं जो ऑलरेडी सेम है. यू कैन चूज दैट वन. वो जो फॉर्मेटिंग है वो अकॉर्डिंग टू आपका टेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो दीज आर द अवेलेबल बिल्ट इन स्टाइल्स. You can apply any one of these style to change the appearance of your table. Is it clear? Yes. Suppose मैंने ये select कर लिया format. Okay. You can also apply the shading. आप इस table की shading भी कर सकते हैं. For this you have to select the complete table. Yes. आपको table को select करना है और किसी एक particular field को select कर लो. ठीक है, एक पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो शेड इट. इज इट क्लियर? मुझे फर्स्ट रो को शेड कर लिया मैंने. आई वॉन्ट टू शेड द सेकेंड रो. इन दिस वे यू कैन परफॉर्म द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेबल एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द टेबल फ्रॉम हियर. ओके, आप बॉर्डर के साइज को चूज कर लीजिए, लाइन स्टाइल चूज कर लीजिए, पेन कलर चूज कर लीजिए. ड्रॉ टेबल. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द बॉर्डर फॉर द टेबल as per your requirement. Is it clear beta? So in this way you can format your table and from the design tab and from layout tab you can perform operations on the table. Yes, हमने सब operations कर लिए. deletion, insertion from rows and columns group, merging and splitting from merge group, सेल्स के साइज को चेंज करना हो, हाइट विड्थ फ्रॉम सेल साइज, अलाइनमेंट चेंज करनी है फ्रॉम अलाइनमेंट ग्रुप. डेटा ग्रुप से हमने कन्वर्ट किया टेक्स्ट टेबल को टेक्स्ट में. एक चीज़ रह गई बेटे हमारे पास, लास्ट ऑप्शन, दैट इज सॉर्ट ऑप्शन. इफ़ यू वांट टू अरेंज द डेटा इन अ टेबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम फील्ड, तो यू कैन क्लिक ऑन द टेबल, सेलेक्ट द एंटायर टेबल and click on this sort. A sort dialog box will appear. You can sort your data. ठीक है, आप मल्टी लेवल सॉर्टिंग भी कर सकते हो, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ आपको सॉर्टिंग बता रही हूँ. आई वॉन्ट टू सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर्स. ठीक है, मुझे रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग करनी है. किस पे? येस, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. आई वॉन्ट टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर एंड क्लिक ऑन ओके. येस, आपका डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टेबल्स इन MS वर्ड. जितना आपके सिलेबस में था हमने वो डिस्कस कर लिया. कुछ और एडिशनल फीचर्स भी हैं बट वी विल नॉट डिस्कस दोज फीचर्स बिकॉज दोज फीचर्स आर नॉट इन योर syllabus. So students, you have to practice. You have to practice it. And if you have you will face any problem, you can contact me or call me. So students, have a nice day and remain safe.